شکریہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمدانی مجلس ہمارا جو کورس ضروریات دین کورس چل رہا ہے ماشاءاللہ اس کا آج 5واں دن ہے اور یہ کورس کی گفتگو کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہے آغاز کرتے ہیں جی حضور اعلیٰ جب ہم نماز نیت کر لیتے ہیں نماز کی ثنا سبحانہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور الحمدللہ بھی پڑھ لیتے ہیں غلطی سے رکوع میں چلے جائیں اس کے لیے کیا حل ہوتا ہے؟ یعنی الحمدللہ پڑھ لی ہے اور درمیان میں صورت ہم نے ملائی نہیں ہے اور غلطی سے ہم رکوع میں چلے گئے اکیلے کی نماز میں جماعت میں تو جماعت کے ساتھ ہے نا تو کوئی حرج نہیں ہے بس پوری نماز پوری کر لیں سجدہ صاحب کر لے تو فرما بردار نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حدیث کے مطابق الحمد شریف پڑھنا یہ لازمی ہے اگر الحمد شریف چھوٹ گئی پھر پوری رکعت ہی گئی پوری نماز ہی گئی اور اگر الحمد شریف پڑھ لی بقایا چھوٹ گئی غلطی سے تو نماز اس کی ہو گئی اگر سجدہ صاحب کر لے گا تو پوری ہو گئی سجدہ صاحب نہیں کرے گا تو مکروہ ہو گئی لیکن نماز اس کی ہو گئی سوال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی جماعت میں کھڑا ہے اس کا یعنی کہ زخم ہے جسم میں کسی حصے پہ لیکن اس میں مطلب ہے نا ریشہ وغیرہ وہ بہ نہیں رہا ٹھیک ہے تو حضور مطلب اس کی نماز ہو جائے زخم ہے اس میں سے کچھ نکل نہیں رہا کوئی اعتراض ہی نہیں ہے اگر اس کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد ادا کرنے کے دوران پٹی کے اندر کچھ نکلا ہے تو بھی نماز ہوگی اور حضور اس زخم پہ اگر مطلب وہ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا زخم دو چار دن میں صحیح ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے یعنی کہ اکثر اوقات لمبا جو ہوتا ہے لمبا زخم بھی ہوتا ہے جس طرح عادل صاحب دا مطلب جیسے کہ وہ تو پکا یوزر ہے دوران وضو مطلب پانی سے اجتناب کرے یا دوران وضو پانی سے اجتناب کرے اور اس پہ وہ کرے کیا کہتے ہیں اس کو مسح دوران وضو اس کے اوپر مسح کرے اور ایسا زخم جیسے بابا عادل صاحب والا زخم ہے ٹھیک ہے جس میں سے گند مواد نکل نہیں رہا اس کے لیے تو بڑا آسان ترکیب ہے اس کے اوپر تیل لگا دیں ایسا زخم جس میں سے خون رس نہیں رہا اس پہ لگا دیں تیل لگانے کے بعد تیل ان چیزوں میں شامل ہے جو جسم پر لگانے سے جزوِ بدن بن جاتی ہیں جسم کا حصہ بن جاتی ہیں اور ان کے اوپر سے پانی بہہ جائے تو وضو پورا ہو جاتا ہے سمجھ گئے تیل ان چیزوں میں شامل ہے زخم تھا تیل لگا دیا پانی اوپر سے گزر گیا وضو بھی پورا ہو گیا اور وضو اور پانی جو ہے وہ زخم کو بھی نہیں لگا بہترین ترکیب ہے تیل لگا دیں ویزلین لگا دیں جب جماعت کے وقت یا جماعت کے بغیر سلام کیا ہے اس کا کتنا یعنی کہ دوران یہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دیر اس طرح سلام کرتے ہیں اس کی نگاہ یعنی کہ یہ شولڈر یعنی کہ کندھے سے ہٹ کے رہتے چلی گئی ایسی جگہ پہ تو کوئی حرج نہیں ابھی پیچھے ہم نے جو کلاس چل رہی تھی جب ادھر نیت سلام پھیرے تو نیت کرے دائیں سائیڈ والے مسلمانوں کا اور نیک جنوں کا مطلب ہے نیت جب کرے گا تو وہ اتنے لوگ ہیں ہی نظر آ ہی جائیں گے نا تو کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں اچھا جی حضور ہاں میرے سوال
ہاں جی، میں ایک یہی میں کہنے لگا تھا کیا؟ کہ حضور لائن واز نا آج سوال صاحب سے کیوں اعتراض لائن کیا وائز مجھے؟ کریں گے، ایک بندے نے اعتراض موضوع- کیا ہے لیکن اعتراض آج ختم کرنا ہے، لائن واز چلے گا جی سوال. بالکل لائن وائز چلے گا. تو ایک موضوع ایسا ہے جو کہ باقی ہے، جی حضور بسم اللہ. میں چاہتا ہوں کہ وہ موضوع نماز سے متعلقہ موضوع ہے، اس تو کو بیان ہو گیا. بیچ میں یہ بغیر چینجنگ والی ہے، جی اس کو شامل کر کے پھر آگے قدم بڑھایا جائے تاکہ پھر سیشن سارا اس سوال و جواب کا ہی ہوگا. وہ موضوع ہے جی امامت کا استحقاق. امامت کا حق کس کو ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے اور شریعت کی شرائط میں سے کئی ایسے بنیادی باتیں ہیں جن میں سے حاکم وقت کا سال میں ایک مرتبہ جمعے کی امامت کرنا واجب ہے. حاکم وقت کا، ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں، اس کے پیچھے بڑی لمبی سٹوری ہے جو میں یہاں بول کے فساد نہیں پھیلانا چاہتا، کیونکہ وہ فساد والی بات ہو جائے گی، لوگوں کے ذہن خراب ہو سکتے ہیں. بہت پرانا نقطہ ہے، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. اچھا، لیکن ابھی کام کی بات یہ ہے کہ شریعت کے مطابق امامت کرنے کا سب سے پہلا حق سلطان کا ہے. سلطان یعنی خلیفۃ المسلمین. جیسا کہ ترکی خلافت تک ایک خلیفہ رہا، سلطان ایک رہا. کوئی بھی تھا، اچھا تھا، نیک تھا، برا تھا، بدکار تھا، لیکن ایک سلطان ہمیشہ رہا. امامت کرانے کا پہلا حق سلطان کا ہے. ہسٹری اٹھا کے دیکھو، خلفائے راشدین کے علاوہ کوئی ایسا سلطان ہے، خلیفہ گزرا ہے جس کی داڑھی پوری ہو؟ داڑھی پوری ہو. کسی ایک خلیفے کو جانتے ہیں؟ نہیں. اسے تو دور ہے، منڈے تو وہ جانے نہیں، مجھے ہی نہیں پوری. آگے بڑھتے ہیں. پہلا کس کا ہے؟ سلطان کا. پھر دوسرا حق ہے امیر شہر کا. امیر شہر. امیر شہر، ہر شہر کا ایک امیر ہوتا ہے نا. جی جی. اچھا. ڈی سی بول لیں آپ، اے سی صاحب بول لیں، ڈی پی او. ڈی پی او بول لیں. تھوڑا اور نیچے آ جائیں، ایس ایچ او آ گیا. آپ کے علاقے کا انچارج ہے ایک ایس ایچ او. ٹھیک ہے. امیر شہر. امیر شہر، اس کا حق ہے کہ وہ امامت کرائے. میونسپل کمیٹی کا افسر، ٹی ایم او. ٹھیک ہے. دبئی کے اندر میں نے 2 سال گزارے اجمان میں. میں نے وہاں دیکھا ہے، وہاں پر یہ قانون ہے کہ جمعے کی امامت ہر بڑے افسر کے اوپر واجب ہے، گورنمنٹ کی طرف سے. جو شہر کا جو پورے ضلع کا انچارج ہے، اس نے پورے ضلع میں کسی نہ کسی ایک مسجد میں، مسجد پکی نہیں ہے پر ہر جمعہ اس نے کسی نہ کسی مسجد میں پڑھانا ہے اور بدل بدل کے پڑھانا ہے. جو تحصیل افسر ہے، جو ایس ایچ او ہے، جو ان کے کسی بھی شعبے کا وہ ایکسین ہے، واپڈا کا ہے، کسی اور شعبے کا ہے، جتنے بڑے افسران جن کا کوئی ایریا ہے کہ بھی یہ افسر ہے، یہ تمہارا ایریا ہے، اس نے اپنے ایریے کی کسی مسجد میں جانا ہے، موبائل کی ایپ کھولنی ہے، آیا ہوا جمعے کا خطبہ جو ابو ظبی سے آئے گا وہ پڑھ کے سنانا ہے، موبائل ایپ آن کرنی ہے، لائیو ریکارڈنگ اس کی ہونی ہے. اس نے لوکیشن کے ساتھ کون سی مسجد میں کتنے بجے شروع کیا، کتنے بجے اس نے ختم کیا، اور اس نے خطبہ سنانا ہے اور امامت کروانی ہے. امام مسجد الگ ہے 5 وقت کا. جمعے کے لیے ایک امیر شہر، جو بھی امیر ہے اس کا جو بھی ایریا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا حق کس کا ہے؟ قاضی کا. وہاں پر جتنے جج ہیں، ان ججوں کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اپنے ایریا کی مساجد میں جا کے نمازیں پڑھانی ہیں اور بدل بدل کے. آج ادھر کیا، کل ادھر، پرسوں ادھر، پرسوں ادھر، اگلے دن ادھر. شیڈول پیچھے ایک محکمہ اوقاف ہے، وہ شیڈول بنا کے رکھتا ہے کہ کون سا قاضی کدھر جائے گا اور کون سا ایکسین کدھر جائے گا، وہ شیڈول بنا کے رکھتا ہے. پھر اس کے بعد گھر والے کا، جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے. اب جس جگہ والے قانون میں آگے بڑھیں کہ جس مسجد میں اگر وہاں پر امام مسجد مقرر ہے اور ان اوپر والے 3 بندوں میں سے کوئی نہیں ہے
तो फिर पक्का इमाम मस्जिद जो मुकर्रर है वो पढ़ाएगा। पक्के इमाम मस्जिद के ऊपर भी इन 3 बंदों का हक पहले है। मेरी बात समझ में आ रही? पक्के इमाम मस्जिद के ऊपर भी इन 3 लोगों का हक पहले है। अच्छा जी, इमामत का सबसे इसके बाद फिर अगर पक्का इमाम मस्जिद नहीं है तो, अगर पक्का इमाम मस्जिद है तो फिर उसका ही हक है। हाँ, वो खुद किसी को वैल्यू दे अलग मौजू है। पक्का इमाम मस्जिद नहीं है फिर किसका हक है? जो हाजरीन में सबसे बड़ा आलम दीन हो, जो हाजरीन में सबसे बड़ा आलम दीन हो, जिसका इल्म दीन का वैसे PhD की बात नहीं कर रहे, दीन का इल्म उसका सबसे ज़्यादा हो वो। अगर सबसे बड़ा आलम दीन नहीं है, तकरीबन हम एक ही जैसे ही इल्म वाले लोग हैं, फिर उनमें से जो सबसे ज़्यादा कारी हो, जिसकी क़िरत प्यारी हो, जिसको कुरान ज़्यादा आता हो, पहला वो जिसको इल्म ज़्यादा है, फिर जिसको कुरान शरीफ ज़बानी याद ज़्यादा है, जो अच्छा पढ़ लेता है, जिसका तलफ़ुज़ प्यारा है, ठीक है। उसके बाद यानी फ़र्ज़ किया कारी कोई है नहीं, सब एक ही जैसे हैं, फिर जो उनमें से ज़्यादा परहेज़गार है, जो नेक परहेज़गार है और एक ही जैसे परहेज़गार हैं, तो फिर अगला हक है जिसकी उम्र ज़्यादा हो, जिसकी उम्र ज़्यादा हो। और अगर तकरीबन एक ही जैसी उम्र वाले बाबे हैं तो फिर जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो, फिर जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। और अगर ये भी नहीं तो फिर यानी एक ही जैसे हैं तो फिर जो खूबसूरत जिसको लोग पसंद करते हों, और अगर सब एक ही जैसे हैं तो फिर जिसका नस्ब आला हो, फिर जिसका नस्ब आला हो। नस्ब में सैयद पहले आ गया, फर्ज किया कोई सैयद नहीं, तो फिर जो इलाके में अच्छे नस्ब वाला इज्जत वाला घर वाला शख्स हो, जिसकी इज्जत है। हाँ। और अगर ऐसा भी कोई ना हो तो फिर जिसकी लंबी दाढ़ी हो, जिसकी लंबी दाढ़ी, आखिरी पॉइंट है लंबी दाढ़ी का। सबसे हल्का दर्जा एंड। और बाज़ लोगों मदारस में मैंने मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ता रहता ना, आपको पता है सारा पाकिस्तान घूमता हूँ, बाज़ जगहों पर लोग दाढ़ी को पहले नंबर पे रखे हुए हैं। पहले नंबर किसका है? सुल्तान का, हाकम का। दूसरा नंबर किसका है? आपके अमीर शहर का। तीसरा नंबर किसका है? काजी साहब का। चौथा नंबर किसका है? पक्के इमाम का। पक्का इमाम अगर नहीं है या पक्का इमाम किसी को अपने ऊपर अहमियत देना चाहे तो फिर किसको अहमियत देगा? आलम दीन को अहमियत देगा। पक्का इमाम अगर किसी को अहमियत देना चाहता है, आलम दीन को अहमियत देगा। फ़र्ज़ क्या यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे फ़र्ज़ क्या हसन शाह साहब आ जाते हैं, मुफ्ती मतलूब साहब आ जाते हैं, इलाके के और बड़े बड़े उलमाए कराम मौजूद हैं, मुफ्तियान कराम मौजूद हैं, कोई और बड़ा मुफ्ती, कोई और बड़ा आलम आ जाता है, तो फिर इमाम साहब मुकर्रर जो हैं वो अगर इमामत कराएं तो जायज़, अफजल ये है कि वो मुफ्ती साहब को आगे करें, मुफ्ती साहब को आगे दावत है। ये अच्छा अमल है। लेकिन अगर ये मुफ्ती साहब को दावत ना दें तो गुनाहगार नहीं है, हाकी नहीं करें। इनकी दाढ़ी छोटी है, मुफ्ती साहब की दाढ़ी बड़ी है, हाकी नहीं कहें। याद रखना, मैं पॉइंट समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है ना, उसकी अहमियत उतनी ठीक है जितनी अल्लाह और रसूल ने उस चीज़ को अहमियत दी है। हम अपने ख्याल के मुताबिक किसी चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकते, किसी चीज़ को कम अहमियत नहीं दे सकते।
अब अगर सबसे पहला हक सुल्तान का है तो मैंने पहला सवाल किया था 4 खुलफाए राशिदीन पहले छोड़ दें आप, 5वें इमाम हसन अलैहिस्सलाम को छोड़ दें, चलो जी छठा जनाब वाली हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी आप छोड़ दें, इनके बाद से आप गिनती करके आज तक देखें कोई एक खलीफा बताएं जिसकी दाढ़ी पूरी हो। पूरी हिस्ट्री में शायद उमर बिन अब्दुल अजीज़ नाम का एक बादशाह गुजरा, शायद उसकी दाढ़ी पूरी हो। मैंने पढ़ा नहीं है कि दाढ़ी के ऊपर पढ़ा ही नहीं है उसका कि भाई पूरी थी या नहीं थी, दोनों बातें नहीं पढ़ी। सलाहुद्दीन अय्यूबी चले डाल लें कोई 2-4 दाने, मतलब 1450 साल में कोई 2-4 दाने आप निकाल दें साइड पे कर दें, सलाहुद्दीन अय्यूबी का डाल दें जिनकी दाढ़ी पूरी थी, ठीक है। इसी तरीके से आप चलो सल्तनत उस्मानिया में एर्तुगरुल को डाल लें, ठीक है। अब सुल्तान अब्दुल हमीद है, मतलब चंद एक दानों निकाल के आप जितने हुक्मरान हैं मुग़ल बादशाहों को देख लें, बाकियों को देख लें, किसी की दाढ़ी पूरी है? यानी पीरियड देखा जाए तो बहुत तवील है, दाढ़ी के हिसाब लगाए तो कम है, किसी की नहीं है। और शरीयत कहती है ये बगैर दाढ़ी वालों का पहला हक है। पॉइंट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स आपके पास इल्म वाला है, इल्म वाला, और वो बगैर दाढ़ी के है या छोटी दाढ़ी वाला है, दाढ़ी मुंडे की बात नहीं कर रहा, दाढ़ी मुंडा अलग कानून लगता है उसके ऊपर, छोटी दाढ़ी वाला, क्योंकि दाढ़ी सुन्नत नहीं है, पहले भी बात हुई, वाजिब है। सुन्नत की शर्त ये है कि ऐसा अमल जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक दुनियावी ज़ाहिरी हयात में हमेशा किया, पर कम से कम एक बार छोड़ा भी, एक बार कम से कम छोड़ा भी, जब छोड़ा तब छोड़ना सुन्नत, जब किया तब करना सुन्नत, और जिसको कभी नहीं छोड़ा वो सुन्नत नहीं है, वो वाजिब है, समझ गए। इसी वजह से उलमाए कराम कहते हैं दाढ़ी सुन्नत नहीं है, दाढ़ी का वजूद वाजिब है, दाढ़ी का साइज सुन्नत है, दाढ़ी का साइज सुन्नत है। सहाबा कराम में से ऐसे सहाबा थे जिनकी दाढ़ी एक मुट्ठी बराबर थी, सहाबा कराम में से ऐसे सहाबा थे जिनकी दाढ़ी ऐसे मुट्ठी बराबर थी, जैसे तारुल कादरी साहब ने हदीसें अपनी बयान करते हैं, ऐसी किताबों में लिखी हुई हैं। जैसे मिस्र वाले ऐसे दाढ़ी रखते हैं, जैसे दुबई वाले ऐसे दाढ़ी रखते हैं, उलमा उनके ऐसे दाढ़ी रखते हैं कि भी ऐसे दाढ़ी थी, ऐसे सहाबा कराम की थी तो ही हदीस की किताबों में आई। सहाबा कराम की धुनी जैसी भी थी। एक साहबी नाम मेरे ज़हन से उतर गया, मैं इबहाम की वजह से नहीं नाम लेना चाह रहा, अदबन के गलत ना बोला जाए। इतनी दाढ़ी थी कि वो बाज़ औक़ात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होने या तशरीफ़ फरमा होने की जगह को अपनी दाढ़ी से झाड़ू दे के साफ कर देते थे। इतनी दाढ़ी लंबी थी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि वो सहाबी आए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें बंद कर ली, अल्लाह देखी होगी ना, कहा तो नहीं काट दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुट्ठी बराबर आती तो बकाया काट देते। किसी ने एक साहबी उनसे पूछा कि हज़रत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी एक मुट्ठी बराबर है, बड़े बड़े साहबा की एक मुट्ठी बराबर है, आपकी लंबी दाढ़ी है, आप क्यों काटते हैं? वो काटते हैं, आप नहीं काटते, क्यों नहीं काटते? क्या बात यह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैंची भी नहीं लगाई, मैंने भी नहीं लगाई, सरकार की एक मुट्ठी पे रुकी हुई है, मेरी अब जहाँ जा रही है मैं क्या करूँ? मैं तो सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ भाई, मैंने तो कैंची नहीं लगाई। वो वहाँ से उठा, और सहाबा का ज़माना था, एक दूसरे के साथ फुल फ्रैंक सहाबा थे, सीधा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गर्मा गर्म तरीके से, ये क्या तरीका है? आप जुमे के जुमे पकड़ते हैं और काट देते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज किताब में लिखे हैं, आपने फरमाया बात यह है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी आई और एक मुट्ठी पे रुक गई, मेरी दाढ़ी अगर आगे बढ़ती है तो मुझे शर्म आती है कि सरकार की दाढ़ी छोटी है, मेरी बड़ी हो, जितनी बढ़ती है मैं काट देता हूँ। मैं
कुरान पाक की, मैं कुरान पाक की आयत पे अमल कर रहा हूँ, मतलब ये हो ना, तर्जुमे में बता रहा हूँ कि भी आयत है कुरान पाक की, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे कदम मत बढ़ाओ, ये आयत है, ठीक है जी। वो इस लाइन पे खड़े हैं कि भी सरकार की दाढ़ी इतनी आई, मेरी इससे आगे नहीं जानी चाहिए, मैंने उनसे आगे नहीं बढ़ना। अब पॉइंट देखें, दोनों ठीक हैं, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोनों को नहीं रोका, उनको भी नहीं कहा भी अबू बकर जाने दो गाड़ी, उनको भी नहीं कहा कि भाई तुम काटो। समझ आ रही बात की? दाढ़ी का साइज सुन्नत है, हिफज कर ली। तर्क वजूद वाजिब है और तर्क वाजिब गुनाह है, तर्क वाजिब गुनाह है। इसी वजह से जो दाढ़ी मुंडा है वो चूंकि हालत गुनाह में है और दूसरे हालत गुनाह में नहीं है, लिहाजा हालत गुनाह वाला शख्स अगर आलम है तो भी वो फ्रंट में नहीं खड़ा होगा। जो दाढ़ी मुंडा है, जिसको शेव कहते हैं, ठीक है। हाँ, अमर्द है, जैसा कि उसकी दाढ़ी आई नहीं, अमर्द उस शख्स को कहते हैं जिसकी दाढ़ी आई ही नहीं, वो बालग हो गया, 25 साल तक भी लोगों की दाढ़ी नहीं आती, उसको शरीयत में अमर्द कहा जाता है, अलिफ मीम रे दाल, ठीक है। अगर ऐसा है तो कोई हर्ज नहीं है, उसकी कुदरत से नहीं आई, साहिब इल्म है तो फ्रंट पे जाएगा। हाँ, अगर सुल्तान है, अमीर है या काजी है, फिर उसकी दाढ़ी की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके लिए हाकिम का होना, ये लफ्ज़ तीनों को मिला के अगर लाएं तो हाकिम वक़्त, पहला हक किसका है? हाकिम वक़्त, तो फिर वो हाकिम वक़्त है और उसका इमामत कराना और मुक्तदियों का उसके पीछे नमाज पढ़ना दीन के और मुल्क के निज़ाम व इंसराम के लिए मुफीद और ज़रूरी है, इसलिए उसके पीछे नमाज जाए, ठीक होंगे। अगर वो हाकिम वक़्त नहीं है और उस शेब वाला है, फिर उसके पीछे नमाज नहीं है। शेब नहीं है, छोटे साइज़ है दाढ़ी का उसके, और उस वो अहले इल्म है, बाकियों से ज़्यादा इल्म रखता है, फिर उसके पीछे नमाज दुरुस्त है, जायज़ है। पॉइंट समझ आ गया? कोई इसमें किसी के ज़हन में कोई अबहाम तो नहीं? किन लोगों की इमामत मकरूह है? ऐसा शख्स जो ग़ुलाम है, आज़ाद लोगों की उसके पीछे नमाज मकरूह है, सवाए इसके कि ग़ुलाम बहुत आलम दीन हो, ग़ुलाम हो लेकिन आलम दीन भी हो, फिर जायज़ है। अगर आलम दीन नहीं है, थोड़ा इल्म रखता है, नॉर्मल टाइप है, तो फिर उसकी इमामत मकरूह है आज़ाद लोगों के लिए। सारे गुलाम हैं, फिर कोई मसला नहीं है। अंधे की इमामत मकरूह है। देहाती यानी कम इल्म आदमी की ज़्यादा इल्म वाले लोगों की इमामत करना मकरूह है। वलदे ज़िना, जो ज़िना से पैदा हुआ और पता है लोगों को कि ये हराम का लड़का है, ठीक है, ज़िना से पैदा हुआ और वो इमामत कराए, वो भी मकरूह है, सवाए इसके कि वलदे ज़िना, जिसका ज़िना से पैदा होना ज़ाती कसूर नहीं है, उसकी मर्ज़ी तो नहीं थी ना कि वो ज़िना से पैदा हो, ठीक है, वो आलम दीन बन जाए फिर जायज़ है। अगर वो आलम दीन नहीं बना, आम आदमी है, तो फिर उसकी इमामत मकरूह है। जाहिल आदमी की इमामत मकरूह है, फासिक आदमी की इमामत मकरूह है, बिदती शख्स की इमामत मकरूह है, जो नमाज को बहुत फालतू में लंबी करता हो उसकी इमामत मकरूह है, औरतों की इमामत मकरूह है। औरत जब इमामत कराए तो औरतें आपस में करें, औरतों की इमामत हो और इमाम भी औरतों के बराबर ही खड़ी हो, ठीक है। नंगे आदमी की इमामत मकरूह है, लेकिन अगर सारे नंगे हों तो नंगा इमाम भी उनके दरमियान में ही खड़ा होगा। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, गुर्बत की वजह से कपड़े लिबास नहीं भी होते थे बहुत सारे लोगों के पास, ठीक है।
उसके बाद हिजड़े की इमामत मकरूह है। अगर हिजड़ा इमामत करवाए और बाकी मुक्तदी भी हिजड़े हों तो बराबर ही खड़ा होगा, लेकिन हिजड़ा दूसरे लोगों की इमामत नहीं करवा सकता, सवाए उसी बुनियादी शर्त के कि हिजड़ा है लेकिन आलम दीन बन गया, उसने इल्म हासिल कर लिया और इल्म दीन हासिल किया। और अल्लाह ताला का फरमान है, क्या इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हिजरा था लेकिन उसने इल्म हासिल करके आलम दीन बन गया, अब वो इमामत कराए तो जायज़ है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसकी इमामत मकरूह है। अब सवाल जवाब का सेशन कंटिन्यू करते हैं। ये मौजू बड़ा इम्पॉर्टेंट था जो कि नमाज के हिस्से में शामिल था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसी भी चीज़ को उतनी वैल्यू देना ही दुरुस्त है जितनी वैल्यू अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। फिर हमारे इमामों ने, 4 बड़े इमाम हैं अहले सुन्नत के, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम ने उस चीज़ को जितनी अहमियत दी वो हमसे हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा इल्म अक्ल फ़हम रखते हैं। उन्होंने मामलात को समझ के वजाहत कर दी कि भाई इमामत का पहला हक किसका है। अगर दाढ़ी वाले का पहला हक होता तो कहते दाढ़ी वाला सुल्तान, दाढ़ी वाला सुल्तान। अगर कहते दाढ़ी वाला आलम दीन, दाढ़ी वाला फलाना, दाढ़ी का जिक्र कहीं नहीं है। ये आज सबसे आखिरी पॉइंट है, जब सारे ही एक जैसे हैं तो जिसकी लंबी दाढ़ी है आखिर में, नहीं तो पहला हक सुल्तान का, हक में उसके मनसब का और उसके दीन इल्म के हिसाब से। अलबत्ता जो क्लीन शेप वाला है उसको वो चूंकि हालत गुनाह में है, उसने वाजब तर्क किया हुआ है तो हालतें गुनाह में है, इस वजह से उसके पीछे जाए। हाँ जी, अब तरतीब आ रहा जैसे अब आपकी बारी थी। जिसने कलमा पढ़ा वो तो मुसलमान हो गया, ठीक हो और गया। मुसलमान और मोमिन में फ़र्क कैसे पता चलेगा? ये मुसलमान अब मोमिन के ज़िम्मे में आ गया। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल है। और सवाल इतना छोटा है, इसके ऊपर सिर्फ 1000 सफ़े की किताब हो सकती है। बहुत छोटा सवाल है। इतना छोटा सवाल है कि सिर्फ 1000 1000 सफ़े की अल्लाह अकबर। किताब आ सकती है, क्योंकि मोमन की पहचान बड़ा लंबा मौजू है। हाँ, चंद बुनियादी बातें हैं, जो मुनाफिक की निशानियाँ हैं वो ना हो तो उसमें ईमान यकीनन है, ठीक है। और ईमान वालों की भी कुछ निशानियाँ हैं, ठीक है। वो अल्लाह से डरने वाला हो, ठीक, अल्लाह के सामने मना किए हुए कामों को ना करने वाला हो, एलानिया गुनाह करने वाला ना हो, गुनाह करके डरने वाला हो, गालियाँ बकने वाला ना हो, क्योंकि गालियाँ बकना मुनाफिक की निशानी है। वादा खिलाफ़ी करने वाला ना हो, क्योंकि वादा खिलाफ़ी करना मुनाफिक की निशानी है। मिलावट करने वाला ना हो, ये मुनाफिक की निशानी है, ठीक है। मुनाफिक की निशानियाँ जितनी कम होंगी उतना ईमान ज़्यादा होगा, जितनी ईमान की निशानियाँ ज़्यादा होंगी उतना ईमान ज़्यादा होगा। ईमान सुबह ज़्यादा शाम कम, शाम ज़्यादा सुबह कम, ऐसा होता रहता है। ईमान घटता बढ़ता रहता है हदीस की रूह से। एक आम नमाजी होता है और एक नमाजी साहब होता है। आम नमाजी और नमाजी साहब, जी, ठीक है, क्या फ़र्क है? आम नमाजी की नमाजें किस दर्जे पर पहुंच जाएं कि वो नमाजी साहब बन जाता है जब उस पर नमाजी साहब के कानून लागू होते हैं? मुस्तकिल नमाज जिसको जो बंदा मुस्तकिल नमाज पढ़ता है, मतलब अगर उसकी कज़ा होगी तो वो अगली नमाज से पहले पढ़ गया, इस तरह के हैं मसाइल नमाजी साहब के लिए। नमाजी साहब के बजाय ना एक और लफ्ज़ है, साहिब तरतीब नमाजी। जी, और एक और है साहिब तरतीब।
صاحب ترتیب وہ شخص ہے جس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی اور وہ جب سے بالغ ہوا اس نے تب سے لے کر اب تک اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہے. ہاں درمیان میں اس کو پتہ نہیں تھا، پہلے نمازیں قضا کر دیں، 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، کچھ بھی وقت گزرا، اس کو جب پتہ چل گیا اور وہ پکا ہو گیا، اس نے اپنے دل کو پکا کر لیا کہ آج سے میں صاحب ترتیب ہوں، وہ اس کی نماز قضا نہیں ہو رہی، اور اس نے نیت کر لی میں نے پچھلی قضا نمازیں جتنی ہیں سب کا حساب کر کے لکھ لیا، اور سب کا حساب کر کے لکھنے کے بعد ایک ایک کر کے ادا کرنی شروع کر دی. اس کی سہولت کے لیے دعوت اسلامی نے ایک ایپ بنائی ہوئی ہے، صلاۃ ایپ ہے، پلے اسٹور پہ وہ ایپ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر قضا نمازوں کی پوری گنتی کا شیڈول موجود ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی ساری قضا نمازیں، فجر کی کتنی قضائیں، ظہر کی کتنی قضائیں، مغرب کی کتنی قضائیں، ہر پانچوں کی الگ الگ کالم بنے ہوئے ہیں، اس پہ اپنی نمازیں گنتی کر کے ایک بار انٹر کر دیں، پھر جیسے جیسے قضا پڑھتے جائیں اس میں سے وہ ایک ایک مائنس کرتے جائیں، ٹھیک ہے جی. حتیٰ کہ وہ ایپ جو ہے نا وہ ان کے اسٹور پہ ویب سائٹ پہ ڈیٹا بھی سیو کر لیتی ہے، اگر موبائل بدلی کیا، ریسٹور کیا تو بھی آپ کا پچھلا ڈیٹا واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ اس نے نیت کر لی کہ میری جو قضا ہے وہ میں ادا کروں گا اور آج کے بعد کوئی قضا نہیں ہوگی، ایسا شخص کہلایا صاحب ترتیب. صاحب نماز نہیں کہہ سکتے، صاحب ترتیب. ہاں صاحب ترتیب نمازی کہہ لیں، اینڈ پہ ڈال لیں. چاہے وہ قضا نمازی ابھی ادا کر رہا ہو، اس کی رہتی بھی ہوں، وہ صاحب ترتیب میں آ جائے گا. نیت کر لیں کہ آج کے بعد سے میں صاحب ترتیب ہوں، آج اس ٹائم کے بعد سے میں پکا صاحب ترتیب ہوں. ایسے شخص کی نماز اگر پھر دوبارہ قضا ہو، ایسے شخص کی نماز پھر دوبارہ سفر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے مس ہو گئی، ظہر کی نماز قضا ہوگی، اگر وہ عصر پڑھے گا تو اس کی عصر کی نماز ہوئی ہی نہیں، کیونکہ وہ صاحب ترتیب ہے. اگر اس کو جماعت کا پہلے ہاں جماعت ہوگی، وہ اگر جماعت اس کو مل گئی وہ جماعت سے پڑھ لے گا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی نماز جماعت سے پورے ثواب کے ساتھ معلق ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگی. کیا ہو جائے گی؟ معلق ہو جائے گی، اور اس کو مغرب کا وقت آنے پر اپنی ظہر کی قضا ادا کرنی ہے پہلے. جیسے ہی وہ ظہر کی ادا کرے گا تو اس کی عصر کی معلق نماز شامل ہو کے وہ عصر تک کا جاری ہو جائے گا. یہ معلق اس کی صرف 24 گھنٹوں کے لیے ہے، اور اگر اس نے 24 گھنٹوں تک بھی اپنی قضا نمازیں پوری نہ کی تو وہ صاحب ترتیب کی شرط سے ختم ہو گیا، پھر وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا. اگر اس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی جماعت نہیں ہو رہی، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، ہاں تو پہلے ظہر کی پڑھے پہلے گا، ظہر کی پڑھے گا، پھر عصر کی پڑھے پھر گا. عصر کی پڑھے گا. اگر ٹائم کم ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، تو پھر عصر کی پڑھے پھر گا. بھی ظہر پہلے پڑھے گا، کیونکہ عصر پہلے پڑھنے سے عصر کی ہونی ہی نہیں. اگر اس نے ظہر کی پڑھ لی، قضا پڑھ لی، ہاں عصر کے اور لیے اس کے عصر کی پاس بھی قضا ہو گئی قضا ہو گئی، تو وہ پھر دوبارہ اس کی بھی قضا پڑھ لے گا، پھر کیونکہ پہلے پڑھے گا تو اس کی ہونی نہیں. یہ کیس پاکستان میں انڈیا میں ہو تو کم ہو سکتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. ایسے صاحب ترتیب ہیں اب بھی بہت سارے لوگ. اگر میں یہی پوچھنا چاہوں یہ نقطہ، اگر اس نے ظہر کی قضا پڑھ لی، ہاں اس کی پھر عصر کی قضا ہو گئی، ہاں تو مغرب کا قضا ہی ٹائم پڑے شروع گا. ہو گیا، ہاں وہ ابھی زوال کا ٹائم ہے، وہ پڑھ نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے. مغرب کی اذان ہوگی، ہاں اذان کے بعد وہ پہلے عصر کی جماعت ملے تو جماعت کو فالو کرے گا، جماعت نہیں ملے تو اکیلا نہیں پڑھ سکتا. جماعت ملے گی تو جماعت کو فالو کرے گا، نماز معلق ہو جائے گی. جماعت نہیں ملی تو اکیلا نہیں پڑھ سکتا، اکیلا پڑھے گا تو ہوگی ہی نہیں. جماعت ملی تو جماعت سے معلق ہو گئی، معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی، ٹھیک ہے. جماعت نہیں ملی تو ہوئی ہی نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑی، کیونکہ وہ صاحب ترتیب آپ کا ہے. اس میں گرامی محمد کاشف. محمد کاشف. اگلا میرا شاہ صاحب یہ سوال ہے کہ مسے کے لیے ٹوٹی کے نیچے ہاتھ دھو لیے بندے نے، ابھی ٹوٹی بند کر دی، وہ ہاتھ ہی استعمال ہو گئے، نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جسم پر وضو کے کام میں استعمال نہیں ہوئے.
ठीक है, टूटी वो बंद करके मुस्तअमल तब होंगे जब वो वज़ू के काम में इस्तेमाल होंगे। या कुछ लोग चूम लेते हैं हाथों को पहले। वैसे तो ये गुस्से से पहले। चूमना तो बिल्कुल बिदअत है, इसको तो मैं तो इसके खिलाफ ही हूँ। ठीक है, तो फिर मतलब अगर चूम लिए तो फिर वो मसा नहीं उसका। नहीं, चूमने से भी वो वज़ू के काम में इस्तेमाल नहीं हुए। पॉइंट याद करें ना, अच्छा, मसा उसका हो जाएगा। मसा उसका हो जाएगा क्योंकि उसने वज़ू के काम में इस्तेमाल नहीं ना किया। नमाज पढ़ी है कोई। कलमात पढ़े ना पढ़े, चूम लिया नहीं चूमा, टूटी बंद कर दी, पानी वज़ू में इस्तेमाल तो हुआ नहीं। वो मुस्तअमल में तो तब जाना है ना जब वो वज़ू में इस्तेमाल होना है, और अगर वज़ू में इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं है। ये मसा का थोड़ा सा तरीका में ये 3 उंगलियां मिलाएंगे, ये 3 उंगलियां यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, और फिर वापसी ऐसे लेके आएंगे हथेली को, फिर ये 2 उंगलियां कानों में डाल के ऐसे बाहर निकालेंगे, और फिर ये ऐसे, फिर ये गर्दन पर। ये ठीक है तरीका? बिल्कुल ठीक है, और ये मुस्तहब है, इसमें कुछ हिस्सा सुन्नत है और कुछ हिस्सा मुस्तहब है, लेकिन वाजिब हिस्सा इतना है कि सर के चौथे हिस्से के ऊपर से उसने ऐसे हाथ फेर लिया, वज़ू उसका हो गया, मसा पूरा हो गया। कानों पे करना सुन्नत है, गर्दन पे करना सुन्नत है, कानों की लौ और पीछे ये सारा ऐसे करना मुस्तहब है। ना हो तो वज़ू पे कोई रुकावट नहीं है। अगला सवाल ये है कि जैसे मर्द सफाई करते हैं अपनी, और 40 दिन का उनके पास टाइम होता है, 40 दिन के अंदर करनी होती है। औरतों का भी यही पीरियड है, और औरतों ने अगर उसको हैज़ आया, वो हैज़ के बाद उसने गुस्ल करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले सफाई करे या उसकी तरतीब अलग से है? भाई अफजल यही है कि पहले सफाई कर ले। मतलब उसकी अगर पहले सफाई हुई, 1 हफ्ते का पीरियड है, पीरियड के बाद उसने गुस्ल कर लिया, तो उसका कोई मजबूरी नहीं है, 40 दिन वाली शर्त है। अगला सवाल है कि सजदा सावा नमाज में बंदे को लग गया, सजदा सावा उसने पहला सजदा किया, बैठ गया जलसे में, दूसरा सजदा किया, यहाँ पे उसकी गलती फिर हो गई, दूसरे सजदे में तो सुनते मतलब 3 दफ़ा वो तस्बीह नहीं पढ़ सका, या एक दफ़ा पढ़ ली, 1 दफ़ा भी नहीं पढ़ी, वो जल्दी से गया अल्लाह अकबर के, फिर बैठ गया, अभी इसकी यहाँ फिर गलती होगी, फिर बैठ गया ताजात में, अभी फिर दोबारा वो सजदा सावा करेगा। सजदे के अंदर जो सबसे फ़र्ज हिस्सा कितना है, सजदा करना है, तस्बीहात सुन्नत में है, लिहाजा अगर गलती से रह गई तो वही सजदा साहब इस गलती के लिए भी काफ़ी है। चले अगर एक सजदा उसने कर लिया, दूसरा सजदा वो गया और नाक लगाया वापस आ गया, फिर तो सजदा साहब हुआ ही नहीं, फिर मतलब दोबारा सजदा नहीं करेगा, दोबारा ही पहले एक सलाम फेरेगा और दोबारा फिर 2 सजदे ही करेगा। वहीं से सलाम फिर गया, पहले तहिय्यात पढ़ेगा? वहीं से सलाम फेर सकता है, ये अफजल ये है कि तैयार पड़ेगा। अगला है कि ये मसवाक करने का सुन्नत तरीका। पहले मसवाक को धो लें, पहले कुल्ली कर लें, फिर मसवाक को चबा के उसके रेशे बना लें। रेशे बनाने के बाद पहले दांतों को ऐसे ऐसे सीधा सीधा साफ़ करें, फिर दांतों को ऐसे लंबे रुख साफ़ करें, फिर ज़ुबान के ऊपर से भी साफ़ कर दें उसके साथ, ठीक है। उसके बाद अच्छे तरीके से दांतों को फुल यूँ घुमा दें। हाँ, तालु। अच्छा जी, अगला सवाल है कि अजान हो रही है या जमात खड़ी होगी, मौलाना साहब किरात कर रहे हैं, वहाँ पे वाशरूम तक आवाज़ जा रही है और किसी ने वाशरूम जाना है, तो वो वाशरूम जाएगा तो उसको आवाज़ सुनेगी, कुरान पाक वहाँ पे सुनेगा, या अजान उसके कानों में जाएगी, तो क्या वाशरूम जाएगा या उधर ही खड़ा रहेगा? अगर तो गुंजाइश है रुकने की तो रुकना मुस्तहब है, अगर गुंजाइश है। अगर गुंजाइश नहीं है रुकने की तो चला जाए, और जो बंदा पहले से बैठा हुआ है वाशरूम में उसके ऊपर तो कोई हर्ज है ही नहीं। बुनियादी रूल है एक शरीयत का,
हरज उस काम के ऊपर है जिस पर आपका इख्तियार है, जिस पर आपका आप वाशरूम में बैठे हैं, अजान हो या ना हो आपके इख्तियार में है, आवाज़ अंदर कानों में आ जाए आपके बस में है। जिस चीज़ पर आपका बस नहीं है उस पर आपका कोई पकड़ भी नहीं। अच्छा बंदा वाशरूम में बैठा है, अजान उसने सुनी है, ज़ाहिर है मजबूरन कानों पे सुन ली जाती बस, है, ठीक है। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह उसने सुना है, वो वाशरूम से जब बाहर आएगा तो ये दुरूद पाक पढ़ेगा, फिर ये उसकी जिम्मा रह गया। मुस्तहब तो है, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बाहर आके पढ़ना चाहिए। अच्छा, इस मौके पे ना एक और मेरा दोस्त है, उसका एक अमल है, फिलहाल मुझे तो पर्सनली वो ठीक लगता है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। वो कहता है कि अक्सर जब उसके साथ वैसे कई बार ऐसे हो चुका है, पता नहीं कुदरती हो चुका है कि वो जब भी वॉशरूम में जाता है अजान शुरू हो जाती है, कुछ टाइमिंग ही कुदरती ऐसी हुई खड़ी उसके साथ। कहता है मेरे साथ ऐसे ही होता है कई बार। फिर जब वो कहता है भी जब अजान शुरू हो जाए ना तो मैं फिर ये करता हूँ कि टूटी जो है ना चला देता हूँ थोड़ी कम रफ्तार के साथ, उसकी आवाज़ ज़्यादा और वो टूटी की आवाज़ आती रहती है, और फिर मैं मतलब उसकी वजह से सुन नहीं पाता। पानी के शोर नहीं होता। हाँ, लेकिन अब इसमें एक पॉइंट और भी है जो मैं जिसको मैं अच्छा नहीं भी समझता कि देखिए अजान को या किसी चीज़ को सुनने से मना करना ये भी एक जुर्म है। लेकिन अब उसका मामला अल्लाह जाने वो जाने कि उसकी नीयत ये है कि मैं वाशरूम में सरकार का नाम ना सुनूं, बाहर आके सुनूं, तो बात तो उसकी अदब के दायरे में है। अब अल्लाह जाने और वो जाने, हम बीच में बोलने वाले कौन होते हैं। अलबत्ता बुनियादी रूल मैंने आपको बता दिया है, जिस पर आपका इख्तियार नहीं है उस पर आपकी पकड़ नहीं है। कज़ा नमाजें मैंने पढ़ी हैं 5-6 इकट्ठी, मतलब कुछ फजर की पढ़ ली, कुछ ज़ोहर की, कुछ असर की, इशा के बाद मेरे पास टाइम है, मैंने इकट्ठी नमाज़ें पढ़ ली हैं। और हर कज़ा के बाद दुआ मांगना चाहिए मुझे, या पढ़ता जाऊँ बस कज़ा पढ़ते नमाज़ें? जाओ। और कज़ा जो वितर होते हैं, वितर की कज़ा, इनकी नीयत कैसे करेंगे? वही जो दूसरे की नीयत है। कज़ा के साथ बस मुतय्यन करना ज़रूरी होता है, मैं कौन सी वाली कज़ा पढ़ रहा हूँ। ज़ोर की कज़ा पढ़ रहा हूँ, फजर की कज़ा पढ़ रहा हूँ, फ़लाने वक़्त की पढ़ रहा हूँ, फ़लाँ दिन की कज़ा पढ़ रहा हूँ, ये ज़रूरी होता है। और वितर रात के भीतर तो रात के ही होते हैं, उसके तो और होते ही नहीं। ईद की नमाज अगर इमाम साहब ने करवा दी है, मैं बाद में आया हूँ, अत्ताहियात में उनके साथ मिला, मैं बाद में उठ के नमाज़ पढ़ूँगा, तकबीरें उसी तरह मैं पढ़ूँगा? बिल्कुल उसी तरह के पढ़ेंगे। और जब बैठ के नफल पढ़ते हैं तो उसमें जो रुकू करते हैं, वो रुकू करते हैं, उसमें कितने का झुकना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, आप अमलन करके दिखाएंगे। मुंह इधर को कर लें, कोई बात नहीं, दिखाना होगा दिखाने के लिए भी मुंह इधर को रखें, हम इसी के कह चलो रहे इसी के हैं, कारण दिखाने के लिए भी हमने उधर से मुंह नहीं हटाना। कैमरा उधर ले जाओ भाई। उस साइड से पैरों को भी दिखाओ और रुकू में भी दिखाओ अच्छे तरीके से, तो पैर भी देख लें, पैर कैसे हैं, पैर दिखाओ भाई, पैर भी दिखाओ। और ये रुकू की हालत है, क्योंकि बैठे हुए रुकू की हालत है, पैर भी देख लें, बैठने को भी देख लें। हो गया जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह ये आज आप देख रहे थे तो हिसाब लगा रहा था आपका। मैं सोच रहा था आज इस्तिग़ासा काफ़ी लंबा है। मेरा मतलब नहीं आएगा। हज़रत मज़ारात पे जाते हैं, क्या वहाँ बोसा लेना गुनाह तो नहीं है? या ये ऊपर रखे होते हैं कोई पत्थर वगैरह या कोई लकड़ी के, वो बंदे मलने लग जाते हैं मुंह के ऊपर, या इसके बारे में? नाम क्या जी? सवाल वैसे बड़ा नाजुक है आपका। अमीर हमजा।
सवाल आपका बड़ा नाजुक है और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। मैं यहाँ पर अब्बा जी के कुछ अमल आपको बताऊँगा और मैं फुल जो है ना इसके अंदर वो नहीं जाना चाहूँगा मसलक के मामलात में। अलबत्ता कुछ बातें करना वो लाजमी है। मसलन माँ बाप, मुर्शद, खामन, बीवी, इनकी कब्र के अलावा किसी की कब्र को छूना चूमना मना है। इनकी क्यों जायज़ है? या किसी बड़े वली अल्लाह की, ठीक है, क्यों जायज़ है और कब जायज़ है? इनकी कब्र को भी हर वक्त छूना जायज़ नहीं। कब? आपकी माँ है, बाप है, आपके दिल में मोहब्बत पैदा हुई खड़ी है, आप उस मोहब्बत में आके आपने उसको चूम लिया है, इस तस्वर के साथ कि ये कब्र थोड़ी है, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरा मुर्शिद है, ये तो मेरा खामद है, ये तो मेरी बीवी है। यानी ऐसी आपके दिल के अंदर की मोहब्बत है। हालांकि बीवी की कब्र को भी चूमना मना है, खामद की कब्र को भी चूमना, औरत का तो वहाँ जाना ही मना है। कि मैंने बात मोहब्बत वाली कर रहा हूँ कि मोहब्बत के अंदर वो चूँकि कर रहा है, लिहाजा उस एक शख्स के लिए उस एक टाइम के ऊपर गुंजाइश है। उर्फ़ आम में जो हम लोग करते हैं, अब्बा जी फरमाते हैं, जाते हैं वली अल्लाह को मिलने, बाहर सीढ़ियों से चूम चट शुरू करते हैं और कब्र तक हर दीवार और हर दरवाजे को हम चूमते हैं और एक काम नहीं करते, वो ये कि बाबा जी को सलाम भी नहीं करते और बाबा जी को कोई फातिहा भी नहीं करते। ये चुम चट किस काम की? जिसको मिलने जा रहे हैं, आप मिलने जा रहे हैं कारी साहब को, कारी साहब के घर की सारी दीवारें आपने चूम ली, बाबे को सलाम भी नहीं बुलाया, क्या उम्मीद रखते हैं बाबा आपके साथ क्या सलूक करेगा? ठीक है, उन पत्थरों को मलना ये सब शिरकिया अमल है, बिद्दतें हैं, जहालत पर मबनी है। इन्हीं की वजह से दीगर मसलक के लोग अहले सुन्नत के ऊपर उंगली उठाते हैं, ठीक है। और मेरी ज़ाती राय ये है, जो मैंने मुताला किया अब तक सीखा, कि ये सारे वो जाहिल लोग हैं जिनको सहाबा के ज़माने से ही मुनाफिकों ने घुसाया हुआ था, ठीक है। एक मैंने किताब में पढ़ा, एक ऐसा मुनाफिक था जिसका नाम इस वक्त मुझे थोड़ा शक में है तो मैं नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद तो नहीं ना देखा, पढ़ा ही है ना, पढ़ाई वाले में गलती भी हो सकती है, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। वो लोगों को पैसे देता था इस बात के कि तुम दूर दराज शहरों में चले जाओ और अली अली के नारे लगाओ और शराबें पियो। समझ गए? ये दौर ये जो अली के नाम पे भंग चरस ये वो सारा कुछ शुरू हुआ, ये उस ज़माने से शुरू है। और हत्ता कि मैं हैरान हुआ, मैंने एक किताब पढ़ता हुआ मुताला करते पढ़ रहा था, कहता कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर हमला हुआ, और ये ख़बर इलाके का नाम भी पड़ा, मैं ग़ीबत की वजह से नहीं ले रहा, उस इलाके में ख़बर पहुंची तो लोगों ने क्या जो रिस्पॉन्स दिया, अच्छा अली नमाज भी पढ़ते थे, इतना किरदार मसख किया गया था। ये वो लोग हैं जो यहूद के फ्रंटमैन के फ्रंटमैन के फ्रंटमैन के फ्रंटमैन के फ्रंटमैन को 8-10 स्टेपों के बाद हमारे अंदर घुले मिले हुए हैं और हम जैसे बन के बैठे हुए हैं और काम उस पर काम कर रहे हैं जो काम इस्लाम के उलट है, खिलाफ है, ठीक है। कब्र को ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैंने अब्बा जी से सीखा या सुना, ठीक है, और मेरे अक्ल के मुताबिक इससे ऊपर जाना जायज़ नहीं मैं समझता। ये आखिरी स्टेप है और ये स्टेप किस के लिए है ये भी ज़हन में रख लें। शरीयत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक ही बंदे के लिए वो चीज़ गलत, दूसरे के लिए वो चीज़ ठीक हो सकती है,
मसलन रूहानी शख्स है, आप क्या है, रूहानी शख्स हैं, रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं, औलियात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फ़र्ज़ किया अगर हम इसको एक कब्र समझ लेते हैं, ठीक है, इसको एक समझ लेते हैं, ये सराहना है, आम तौर पर इधर दरवाज़ा होता है या इधर दरवाज़ा होता है। जिस साइड से भी दरवाज़ा था दाखिल हुए, पैरों वाली साइड दाईं साइड को हमने तसव्वुर किया कि ये हज़रत साहब का हाथ है, यहाँ पर क्या है उनका ऐसे, ये इनका हाथ है, और हमने इनके हाथ के ऊपर हाथ रखा और कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐसे हमने हाथ रख के सलाम बुला लिया। इतने तक अब्बा जी फरमाते हैं जायज़ है, वो भी उस शख्स के लिए जो इतनी नीयत इतना मकाम रखता है और यहाँ के साथ इतनी मोहब्बत रखता है, जो नहीं रखता उसके लिए ये भी मना है। हो सकता है मेरी बातें किसी को बुरी लगी हों, पर मैं बात करूँगा वो जो कुरान और हदीस से साबित है, जिसको दुरुस्त बात है, जो मैंने अपने मुर्शिद से सीखी देखी। अब्बा जी ने मुझे, जब मैं सफ़र शुरू किया, मुझे अब्बा जी फरमाते थे जब साहिब मज़ार के पास जाओ बस इतना करना है, बहुता तुम्हारे दिल में अदब आ जाए तो दूसरा हाथ लगा लो, बहुता तुम्हारे दिल में अदब आ गया ना, दाता साहब पे चलेंगे, बाबा साहब के पास चलेंगे, बहुत अदब आया खड़ा, दूसरा हाथ लगा लो बस, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। हाँ, आप कुछ करना चाहते हैं, अदब कुछ आप चाहते हैं, मज़ार पर जाकर कुछ फैज़ लेना चाहते हैं, अब भाई समझते हैं, अगर आपको पता है कि साहिब मज़ार का ये वजीफ़ा था, मसलन हिज़्बुल बैत शरीफ पढ़ते थे, वो दोहे बरती शरीफ पढ़ते थे, वो 10 अस्मा पढ़ते थे, वो अल्लाह सुमत पढ़ते थे, सूरत इखलास के अमल थे, आयतुल कुर्सी के अमल थे, फातिहा शरीफ के अमल थे, किसी चीज़ का आपको पता है पक्का कि फ़लाँ चीज़ के अमल थे और तुम भी उसके अमल हो, पॉइंट निशीन रखना, वो भी अमल थे, आपको पक्का पता है, आप भी खुद उसके अमल हो, अब ये अमल उनको तोहफा करो। मसलन दाता साहब अल्लाह सुमत के अमल है, मैं भी अल्लाह सुमत का अमल हूँ, अब मैंने फरमाया जब दादा साहब जाओ अल्लाह सुमत पढ़ के तोहफा किया करो। बाबा साहब अल्लाह सुमत के अमल थे, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार, निज़ामुद्दीन औलिया, चिराग दैनवी रहमहुल्लाह अलैहि, हज़रत अपना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, राबिया बसरी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, ये सब अल्लाह सुमत के अमल गुजरे। हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, इनके मज़ार पे जाओ तो अल्लाह सुमत पढ़ के तोहफा करो, जो तुमको आता है और उनका भी वही अमल है, ये तोहफा करोगे तो उनको बहुत प्यारा लगेगा। अगर आपको नहीं पता कि वो किस चीज़ के अमल हैं, तो फिर दो ऐसे अमल हैं जिनके बगैर वली नहीं बन सकता, वो फ़र्ज हिस्सा है निसाब का। दो ऐसे अमल हैं जिनके बगैर वली, कोई वली ऐसा नहीं है जिसने वो दो अमल नहीं किए, इसके बगैर दर्जा वलायत का दरवाज़ा नहीं खुलता। और भी अमल हैं लेकिन वो दो ऐसे फ़र्ज अमल हैं, एक का नाम है अस्तगफिरुल्लाह और दूसरे का नाम है दुरूद शरीफ। इनके बगैर कोई वली नहीं बनता, लिहाजा अगर आपको नहीं पता तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाओ, जितना दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो पढ़ो, और जाके उनको दुरूद शरीफ तोहफा करो। ये दुरूद शरीफ तोहफा करना उनकी कब्र को बोसा देने से 1 लाख गुना अफजल है, उनकी दीवारों को दरवाज़ों को चुम चाट करने से करोड़ गुना अफजल है।
ये दरूद शरीफ उनको तोहफा करना उस पत्थर को मलने से 1000 गुना अफजल है, लाख गुना अफजल है। ठीक है, आपको वो फैज़ मिलेगा जो असली फैज़ है। हाँ जी, और साथी का अच्छा यही अगर जो आप कह रहे हैं मज़ारात के लिए मदीना शरीफ और मक्का शरीफ कैसे ये जो मतलब उनके लिए तो नहीं, देखे ना तबर्रुकात का फ़र्क है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबर्रुकात सहाबा कराम ने करके दिखाए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई, लिहाजा वहाँ तक बात और है। उसके बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबर्रुकात कितने मिलते हैं? आप ये बताएं किसी शख्स को जिनके पास वो मौजूद भी होते हैं, जिनके पास वो मौजूद भी होते हैं। देखें मुँह मुबारक अक्सर लोगों के पास है, मिलता है ना आपको अक्सर। कभी किसी को देखा कि उसने मुँह मुबारक निकाल के मुंह पे मला हो? हालांकि वो तो सरकार का अपना मुँह मुबारक है, पत्थर तो पत्थर रह गया ना, ये तो सरकार का अपना मुँह मुबारक है। किसी ने उतार के चेहरे पे मला हो, जिस्म पे मला हो, क्यों नहीं? क्योंकि ये रास्ता गलत है। उसकी बजाय हाँ ये रास्ता ज़रूर दुरुस्त है कि मुँह मुबारक नज़र आया तो सब दरूद शरीफ पढ़ते हैं और उस नियत के साथ कि ये दरूद सरकार की बारगाह में मुँह मुबारक के वसीले से डायरेक्ट अभी का अभी पहुँच रहा है और सरकार की बारगाह से करम हो रहा है। आज को छोड़ दें, पुराने ज़माने में चले जाएं। पुराने ज़माने में यानी कि ये 150-200 साल को छोड़ देना, जो अंग्रेज़ों का आया ज़माना, ये वाबियों का ज़माना, इसको भी छोड़ दें। थोड़ा पीछे जाएं तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलता कि भाई खाकिशवा करबला वाली की बात नहीं मैं करने वाला। फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ जन्नतुल बकी की मिट्टी का। वहाँ से कितने लोग मिट्टी लेके आते थे? कोई नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जाते थे, कितने लोग वहाँ से मिट्टी उठा कर लाते थे? कोई नहीं। कोई करोड़ लाख में से एक बंदा तबर्रुक बरकत के तौर पे ले आता, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर पड़े हुए पत्थर किसी ने उठा के कभी मले जिस्म पे? हाजी जाते हैं ना, जालियों पे हाथ लगाना मना है, फर्श पे तो लगाना मना नहीं ना है। कभी किसी हाजी ने जाके वहाँ मले हो तो बताओ, आज ही बता दें, आज के ज़माने में किसी ने किया हो? क्योंकि जब तक अहले इल्म का ज़माना रहा वहाँ पे ये बात समझाई जाती थी कि भाई इन चीज़ों में बरकत नहीं है, बरकत सरकार की नज़र करम पे है और नज़र करम पर की तरफ तवज्जो करोगे तो काम बनेगा और वो दरूद शरीफ से मिलनी है। हत्ता कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आपके एक वाक़या लिखा हुआ है। आप हाजी या उम्रे के लिए गए तो तवाफ़ कर रहे थे और हजर असवद के पास पहुँचे और हजर असवद को बोसा देने लगे। बोसा देने से पहले आपने हजर असवद को मुखातब करके इरशाद फरमाया, ऐ पत्थर, मेरी नज़र में तो पत्थर ही है, अगर तुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा ना दिया होता तो मैं कभी तुझे न चूमता, हाथ भी ना लगाता। समझ गए ना? तो सारे तबर्रुकात असल चीज़ ये है कि सरकार से दरूद भेजें, अपने मुर्शिद से तो फैज़ हासिल करने का तरीका दरूद शरीफ पढ़ के अपने मुर्शिद को तोहफा करें, फिर देखिए मुर्शिद का फैज़ कैसे मिलता है। मुर्शिद का फैज़ लेने के लिए भी सबसे बेस्ट चाबी दरूद शरीफ है। हाँ जी, तुम करेंगे, किसी साथी का और सवाल है? मेरा एक सवाल है, जी किसी दोस्त साहब आपने आज कल भी कहा, आज फिर दोबारा रिपीट किया उसने जी कि असर भाई अपना सवाल ये है, दाढ़ी जो है, दाढ़ी वाजिब है? वजूद वाजिब है, वजूद साइज सुन्नत है। हाँ जी, हाँ जी। सही से। तो जिसका वजूद है यानी कि छोटी सी दाढ़ी है उसकी, तो
वो इमामत कर सकता है। ये तो पूरा मौजू हमने, आप कहाँ थे तब? नहीं इसके मतलब वो कह रहे कि वाजिब और अब तक बढ़ती है या घटती है का मामला जो है हाँ। वो एक साइड पे है। हाँ। तो दाढ़ी उसकी छोटी है और वो मत करो, किसी बंदे की दाढ़ी है ज़्यादा तो वो पीछे खड़ा है और उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, वो क्यों नहीं पढ़ता? उसकी वजह या वो पढ़ेगा या सवाब मिलेगा या नहीं पढ़ेगा तो क्या मामला है? नहीं देखिए, मैंने इस पे पहले बात की, वो कम इल्मी की बुनियाद पर हो सकता है। जो मैंने मौजू छेड़ा ना, इसीलिए छेड़ा था कि ये मौजू इसके साथ मुंसलिक मौजू है कि दाढ़ी आखिरी ऑप्शन है। दाढ़ी आखिरी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? हाकिम मुकद्दम, फिर अहले इल्म, बंदा अहले इल्म है, फिर उसके बाद आ गया मुस्तकिल इमाम, जिसको लोगों ने मुत्तफिक तौर पर अपना इमाम बना लिया। ठीक है। अब दाढ़ी में एक पॉइंट और है, ऐसा शख्स जिसकी दाढ़ी छोटी है लेकिन उसने नीयत कर ली कि मैं अब से दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा जब तक मेरी पूरी नहीं होगी। जैसा उसने नीयत कर ली कि मैं अब बिल्कुल दाढ़ी को नहीं छेड़ूंगा, मूंछें काटता रहूँगा, दाढ़ी को छोड़ दूंगा जब तक पूरी नहीं होती, उसने नीयत कर ली, उसकी हुक्मिया तौर पर दाढ़ी हो गई। हाँ, अगर उसने कटवा ली तो वो फिर इस शर्त से बाहर चला जाएगा। उसने अंदर से नीयत पूरी पक्की कर ली और ऐलान भी कर दिया, कह भी दिया कि भाई साहब, सब लोग सुन लो भाई, मेरी आज के बाद दाढ़ी की मेरी ये नीयत है, आने पे जितना टाइम लगेगा सो लगेगा। जो अपने दावत इस्लामी वाले साथी हैं, दाढ़ी की जब दावत देते हैं तो ये इतना ही बात पे कहते हैं, भाई साहब आप नीयत कर लें, नीयत के बाद आपकी दाढ़ी होगी, बस आज के बाद इस लम्हे के बाद से आपने कटवानी छोड़ देनी है, तो आपकी हुक्मिया तौर पर हो गई। जब पूरी आ जाएंगी तब अमलन हो जाएगी, तब तक वो हुक्मिया मौजूद है क्योंकि नीयत कर दी है। हाँ, नीयत ही नहीं है, नीयत ये है कि मैं थोड़ी सी इतनी रखूँगा, इतनी रखूँगा, इतनी रखूँगा, फिर नहीं है। हत्ता के बाज़ उलमा कहते हैं अगर नीयत नहीं है लेकिन एक मुट्ठी से बड़ी हो गई, जंगलों में फिर रहे थे और उसके पास शेव करने का मौका नहीं था, वो दाढ़ी बढ़ते बढ़ते एक मुट्ठी से भी बड़ी हो गई, लेकिन उसकी नीयत नहीं थी दाढ़ी की, तो उसकी दाढ़ी नहीं है। क्यों कि नहीं, उसकी नीयत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी नीयत नहीं। अगर उसकी नीयत है लेकिन अभी आ रही है तो उसकी हो गई हुक्म। ठीक है। और अगर ऐसा कोई शख्स करे कि भी इरादतन ऐसे बंदे से पीछे हटे, तो फिर ये जायज़ नहीं है। इसको आप तर्क जमात का गुनाह कह सकते हैं कि जमात को जानबूझकर छोड़ना, जमात को जानबूझकर छोड़ना। तर्क जमात अलग एक शिक है, किताब में लिखी हुई है, फिर टाइम शॉर्ट है। नमाज का तो पूरा महीना भी अगर चलते रहते तो मौजू नहीं ख़त्म होने वाला। ये भी तो है ना, भी जमात उसके साथ उसका दिल नहीं मानता। हाँ, तो ये भी एक पॉइंट है। नमाज पढ़ उससे सबाब ले अलहदा, फिर बाद में पढ़, ये कभी भी आवाम में ये महसूस ना हो कि मैं उसने अलहदा। बारकाफ ये नाजुक मौजू है, इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। मुख्तसरन इतना है कि अगर फ़र्ज़ किया, जैसे अपना पॉइंट पर आ जाते हैं अपने कारी कैसर साहब, पहले इनकी दाढ़ी मुबारक छोटी थी, फिर हमारे साथ गुफ्तगू हुई, हमने इनको तबलीग की कि जी आप दाढ़ी ना पक्की कर लें, तो इन्होंने अपना इरादा ज़ाहिर किया कि भी मैं मतलब है आज के बाद मैं नहीं कटवाऊँगा। ठीक है। तो अब जब इन्होंने इरादा कर लिया कि मैं अब आने दूंगा, जब पूरी एक मुट्ठी हो जाएगी, एक मुट्ठी से बढ़ेगी, फिर देखेंगे। ठीक है। फिर दो सुन्नतें हैं, एक मुट्ठी बराबर, एक कैंची ना लगाना, फिर दोनों में से किसी एक सुन्नत पर चल जाएगा, मुट्ठी बराबर वाली सुन्नत पे चल जाएगा या कैंची ना लगाने वाली सुन्नत पे चल जाएगा।
یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت حکمیہ طور پر ہو جائے گی کہ اس نے ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے، موضوع آیا کھڑا ہے۔ اگر آپ ایسا ارادہ واقعی رکھتے ہیں تو سب کے سامنے اس کا اقرار کریں تاکہ اعلان کرنا اس نقطے کے اندر ضروری ہے۔ الحمدللہ جیسے نکاح کے اندر اعلان کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اس کے اندر بھی اعلانیہ کہنا کہ بھی میرا میاں ارادہ ہے، آنے پہ جو فطری ٹائم لگنا ہے وہ لگے گا، لیکن میں آج اس لمحے سے یا میں فلاں دن سے فلاں تاریخ سے میرا یہ ارادہ چل رہا ہے، ہاں آپ کو نہیں پتہ چلا، میں آج بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا یہ پختہ ارادہ ہے کہ جب میری داڑھی پوری ہو جائے گی تو میں اس کو سنت پہ رکھوں گا، لیکن میں ابھی سے سنت کی نیت سے اس کو چھوڑ دیا میں نے۔ ہاں جی جی آپ نے فرما دیا میں نے فرمایا نہیں، میرے فرمانے سے ہوتا ہے۔ ایسے آپ کہہ دیں قاضی والے معاملے میں جناب قاضی صاحب نے خود ہی کہہ دیا لڑکا لڑکی نے قبول ہے، کہا نہیں، حضور میں نے کیا پہلے ہے بھی پہلے؟ اعلان کیا۔ چلو ابھی مجلس میں دوبارہ کہہ دیں، حضور ویڈیو ریکارڈنگ اچھا ہو رہی یہ ہے۔ میرا بڑا اہم سوال ہے، اس پہ ذرا آپ نے حکم فرمایا، بار بار میں نے بھی سنا علماء سے یہاں سے داڑھی ایک موٹ ہوتی ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ دبئی یا سعودیہ وغیرہ وغیرہ وہاں پر ایسے لوگ رکھتے ہیں داڑھی، چلو ایسے والی پہ میں تسلیم کرتا ہوں یہ داڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس ہم جو بریلوی یا اہل سنت سارے اسی کو مانتے ہیں۔ جی یہاں سے اس کا اٹیچمنٹ ہے اور یہ داڑھی ہے ایک مٹھ، تو یہاں سے جو داڑھی بڑی وہ اس کی مٹھ میں آ گئی، تو جو ادھر سے بال ادھر جا رہے ادھر کینچی لگ سکتی ہے؟ ان کے بارے میں یہی دونوں رائے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ جو بال علماء کرام کہتے ہیں جو بال بالکل ٹیڑھے میڑھے ہیں ہاں جی ان کے لیے گنجائش ہے، گنجائش کر نکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے وہ لکھتے ہیں مٹھی ایسے کر دو، مارے گا نا، اگر شک ہے نا ہاں جی مٹھی ایسے کر دو، یعنی کہ ادھر سے بھی ایسے ہے ادھر سے بھی ایسے ایسے مٹھی کر دو نا تو پھر پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ جس کو بڑے بڑے علماء کرام کو میں نے دیکھا ہے، آپ اس موضوع پر سمجھنے کے لیے نا مشہور لوگوں کی داڑھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا میں وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ذرا تھوڑا انہوں نے آج داڑھی کو نا خط خود کروایا نا، تو میں نے نوٹ کیا کہ انہوں نے یہاں سے تھوڑا نارمل رکھا ہے اور ادھر سے تھوڑی سی بڑی 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 نظر آ رہی ہے، تو میں اس کی شیپ آپ کو ذرا سمجھتا ٹھیک ہے، تو میں اس کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لفظوں کی کمی بیشی ہو تو نوکری معاف فرمائے کہ پوچھ لو ان سے اگر تم نہیں جانتے۔ اس کا دوسرا مطلب بھی ہے تفسیر کے پوائنٹ سے، سیکھ لو ان سے جو جانتے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں، دیکھ لو ان کو جو ٹھیک کھڑے ہیں۔ اب ٹھیک کھڑے والے لوگوں میں سے 5-6 موٹے نام میں لے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ عالیہ، ٹھیک ہے جی، ان کی داڑھی دیکھ لیں، اس کے بعد اجمل قادری صاحب کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، ثاقب مصطفی صاحب کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ سارے اہل سنت کے بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا نام نہیں میں اس کو معذرت خواہ ہوں، میں اس پر بولنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا اختلاف ہے، اس پہ اختلاف ہے، اس پر گفتگو مت کریں، میں نے ان کا نام نہیں لے رہا، میں نام لے رہا ہوں اہل سنت بریلوی مسلک کے لوگوں کا، ٹھیک ہو گیا۔ الیاس قادری صاحب، مصطفیٰ ثاقب مصطفی صاحب، پیر اجمل قادری صاحب، ٹھیک ہے جی، مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی ابوبکر شاذلی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت کے مایا ناز لوگ ہیں۔ ان کی داڑھی سائڈوں سے بھی دیکھ لیں، نیچے سے بھی دیکھ لیں، ادھر سے بھی دیکھ لیں، جیسی ان کی داڑھی ہے وہ میرے مشاہدے کے مطابق سنت کے عین مطابق ہے، اور 19-20 کے فرق کے ساتھ سب کی داڑھی ایک جیسی ہے۔ ڈاکٹر خادم رضوی، علامہ خادم رضوی صاحب کو دیکھ لیں، یعنی کہ وہ سنت والا انہوں نے فرما دیا، اگر یہاں سے کمی پیچھے ہوتی تو گناہ میں تو نہیں نا، گناہ سرزد تو نہیں ہوگا۔ انہیں مکردہ بھی ہے اچھا ایک منٹ، یار کی مقدر ہے اگلی پوائنٹ یہ دیکھیں، اگلا پوائنٹ یہ دیکھیں، داڑھی یہاں پر ہے، جی جو علماء یہاں سے بال کاٹتے ہیں نا وہ اسی قانون کی وجہ سے کاٹتے ہیں، داڑھی یہاں پر ہے، یہ گالیں ہیں، گال،
इसी वजह से यहाँ से जो बाल ऐसे जैसे रीछ जैसे हो जाएं उनको काट देते हैं, ये बिल्कुल ये ठीक है। लेकिन इतने भी नहीं कि कंप्यूटर दाढ़ी बना दी जाए, बस मुनासिब हद तक जितने से दाढ़ी दाढ़ी लगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है उनकी दाढ़ी फुल ऐसे नीचे बराबर, यहाँ वाले बराबर वो आके सिल्की बाल होते हैं ना, ऐसे काट देते हैं, बराबर काट देते सिल्की हैं। बाल होते हैं ना, उससे कोने से नीचे तो जाते जब आएंगे तो तब देखी जाएगी ना। हैं। इंशाल्लाह दाढ़ी बाकी हुजूर आपने हुक्म फरमा दिया, मैं रिपीट कर दूं, मैंने अब क्या हो गया भी पहले भी कहा, अब दोबारा का तो लाइव चल रहा है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोबत और आपके हुक्म के मुताबिक अल्लाहुम्मा आमीन कि मैंने दाढ़ी की नियत की और इसको इंशाल्लाह ताला सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मोटी दाढ़ी जो इंशाल्लाह नियत करता हूँ और की हुई है, और दोबारा मैंने रिपीट कर दी आपकी ज़िरसदारत आपके दिल से आया। अल्लाह करीम कबूल फरमाए आपकी नीयत को, ठीक है। ये बात याद रखें। दाढ़ी के मौजू के ऊपर एक और मौजू है, तयम्मुम वाला और वज़ू वाला। एक बंदे का तयम्मुम है, एक बंदे का वज़ू है। जिस बंदे का वज़ू है वो मुक्तदी बने और जिसका तयम्मुम है वो इमाम बने, जायज़ नहीं। जिस बंदे का तयम्मुम है और जिस बंदे का वज़ू है, वज़ू वाले की इमामत तयम्मुम वाला करे, बड़ा अजीब है, जायज़ नहीं। किताबों में लिखा है, इसी किताब में लिखा है, और भी बड़ी, ये वो किताब है जो दरस निज़ामी के निसाब का हिस्सा है। तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान में बाकायदा पढ़ाई जाती है, ठीक है, और इसका बाकायदा पेपर दिया जाता है। मैंने भी इसके पेपर दिए हैं, और भी हमारे लोग सब जो भी कोर्स करते हैं सुन्नियों के, वो सब इसको पढ़ते हैं, चाहे वो देवबंदी हो चाहे वो बरेलवी हो, ठीक है। इसी कानून के तहत माजरत का दो बंदे अहले इल्म हैं, दो बंदे अहले इल्म हैं, एक की दाढ़ी छोटी एक की बड़ी, छोटी वाले की इमामत और बड़ी वाली पीछे मुक्तदी, जायज़ नहीं है। इल्ला ये कि जैसे आपने अब किया, सवाए इसके कि जैसे आपने अब किया कि मैं एलानिया भाई अब आने पे जो टाइम लगना है सो लगना है, मेरी नीयत हो चुकी है, और उसको अमलन करके भी दिखाएं। दाढ़ी टेढ़ी मेढ़ी जाने दें, जैसी जा रही है, इधर हो रही है उधर हो रही है। अब मेरी दाढ़ी देखें, कहता मैं कई बार मुझे लगता है भूत बन जाता हूँ मैं, फिर मैं उसको थोड़ा सही तो सीधे कर लेता हूँ। अब मेरे दाढ़ी के बाल ही ऐसे हैं, टेढ़े मेढ़े से हैं, मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ कानों से तक यहाँ वाला स्ट्रेट लगाते हैं हम तो, पीर मुरीद वाला स्ट्रेट लगाते हैं, जो भी लगाए हैं, बात की बात है, लेकिन मकसद ये है कि मैंने इसको खुला छोड़ा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी दाढ़ी अंदाज़न 2018 से अभी काउंट करें तो कितने साल बने? 18 से 24 ये 6 साल लंबी दाढ़ी है। माशाल्लाह। मैं बिल्कुल नहीं कटवाता जी, ऐसे ही है, हमने देखी पहले वाली भी और अब वाली भी। मैं बिल्कुल नहीं कटवाता, खुली छोड़ी हुई है, और मैं शुक्र करता हूँ इस पर, खुली सरकार वो जाती नहीं वहाँ पे, एक मिनट, शुक्र करता हूँ मैं इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मेरे रब ने दी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक एक मुट्ठी पे आके रुक गई। मैं समझ गया। मेरे में अल्लाह ताला ने यहाँ पे रोक दी, ये मेरे मालिक का एहसान है कि सुन्नत अता फरमाई। कोई कमाल नहीं है इसमें, मेरा करम है मालिक सोने का, मेरे शुक्राना है मेरे लिए, ठीक है, कि मैंने ये बिल्कुल, मैं कैंची लगाता ही नहीं, सिर्फ ये कानों के ऊपर से मैं कटवाता हूँ, कानों के ऊपर से, ये वाली जगह से, ये वाली जगह से जो कानों के अंदर जाती है सिर्फ, और ये बस इतनी। कल में कहा जाता है, कल में जिसको कहा जाता है, ठीक है, कलमों से नीचे मैंने कभी छेड़ी ही नहीं, मुँह से कटवाता हूँ, और ये बिल्कुल खुली छोड़ी हुई। और ख़त पहले भी बात की, जिसके ख़त हो वो ख़त कराए, जिसके ख़त ना हो वो ख़त कराए, मना है, मकरूह है। बाज़ुलमान के गुनाह तक लिखा है कि भाई जिसके ख़त गर्दन पे नहीं है वो एवं कंप्यूटर दाढ़ी बनाए, जिसके इधर नहीं है वो एवं जनाब वाले ब्लेड लगवाए, मना है। मेरे नहीं है, मैं नहीं लगाता। सैकड़ों और लोग हैं, उलमाए कराम मैंने देखे हैं जिनके नहीं है वो नहीं लगाते, जिसके हैं वो लगाए, जिसके नहीं है वो ना लगाए।
फालतू ब्लेड मत करें, फैशन दाढ़ी मत बनाए, ठीक है नी। क्लोज करें, कुछ है और है नी कुछ आप इरशाद फरमाने लगे थे, कथा कलामी कर जी वो दरमियान में कथा कलामी शुरू हो गई माज़रत अब आपकी इजाज़त से गुजारिश है ऐसी कि इमाम साहबान वास्ते तो साढ़े मुक्तदियां ने ये पसंद किया भी उन्हें दाढ़ी होनी चाहिए। मैं जरा थोड़ी जुबान च गल कर रहा पंजाबी जी जेडे मुक्तदी हजरात बैठे ने वो भी तो नीयत फरमान के जनाब भी असी भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने आज इंशाअल्लाह उन्होंने अहले सादात दी वसाफत नाल इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह अज तो बाद असी दाढ़ी मुबारक जी सुन्नत के मुताबिक रखेंगे। कहो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बस ये गुजारिश है छोटी किबला साहब दे वसाफत दे नाल भी चलो अज बाबरकत महफिल मजलिस मौजूद है। चलो इन्हां दे संग लगे हो सकदा साडी ये नेकी जिहड़ी है साडे वास्ते बख्शिश दा जरिया बन जाए जी। दुआ अल्लाह चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। रब्बि ज़िदनी इल्मा। या इलाहुल आलमीन अभी चंद घड़ियाँ बैठकर तेरे प्यारे दीन की बातें सुनी सीखी। या इलाहुल आलमीन इस पर हमें हमेशा ज़िंदगी भर साबित कदमी के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे अहले खाना बीवी बच्चों को भी इल्म दीन से मुनव्वर फरमा और उन्हें भी बाअमल मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो दोस्त इस महफिल में इस हल्का में आना चाहते थे किसी वजह से नहीं शामिल हो सके, या इलाहुल आलमीन उनकी नीयतों से भी वाक़फ़ है उन्हें भी इसका हिस्सा अता फरमा। या इलाहुल आलमीन बिलखसूस किबला चमन शाह साहब सफ़र करके हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें सिर्फ़ तेरा और तेरे महबूब का फरमान सुनाने के लिए तशरीफ़ लाए। या इलाहुल आलमीन इनके इल्म में उम्र में अमल में बरकतें अता फरमा आमीन। बिलखसूस इनके सिलसिले को तरक्की अता फरमा आमीन। और जो दोस्त इस सिलसिले के साथ मुंसलिक हैं उनको साबित कदमी के साथ इनके साथ काम करने की तौफीक अता फरमा आमीन। या इलाहुल आलमीन जो आज नमाज के बारे में दर्स हुआ आज तक भूले से या जानबूझकर हमारी जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हुई अपनी रहमत के सदके दरगुजर फरमा। या इलाहुल आलमीन आइंदा हमें मुखलिसीन इबादत गुजारों में शामिल फरमा। इलाहुल आलमीन हमें लज़्ज़तों का शौक़ अता फरमा, रातों को इबादत करने की तौफीक व हिम्मत अता फरमा, हमें 5 वक्ता नमाज पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में अपने प्यारे नबी की मोहब्बत पैदा फरमा, उनकी फरमान पर हमें मर मिटने का जज्बा अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इस मस्जिद को भी हमेशा मुखलिस नमाजियों के साथ आबाद व शाद फरमा। या इलाहुल आलमीन इस मस्जिद के इमाम मुतवस्सिलीन कमेटी वाले खिदमत करने वाले इस मस्जिद के कुर्ब जवार में रहने वाले सब पर अपना खसूसी रहम व फजल फरमा। इलाहुल आलमीन सबको दीन से बहरामंद फरमा, इन्हें सही मुसलमान बनने की बाअमल मुसलमान बनने की सआदत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो हमारे हक में बेहतर है वो भी हमें अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या